हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ओके, लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और इसमें मैंने आपको पूरा कंटेंट जो है पढ़ाया, सारी साइकिल कैसे बनता है, क्या चेंजेस आती है हर फेज में, दैट वी हैव ऑल डिस्कस्ड वेल। Today I am going to show you some questions which may occur in the NEET level of examinations। आपको कुछ क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इनको कैसे करना होता है। ठीक है, आज थोड़ा सा उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सी, आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपको क्वेश्चन माइटोसिस पे इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, रिगार्डिंग द माइटोसिस आपको क्वेश्चन आएगा, सपोज to produce 100 number of cells, how many divisions of mitosis or how many mitotic divisions are required। ठीक है बेटा, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ अगर 100 सेल्स बनानी होगी तो 100 सेल बनाने के लिए कितने माइटोसिस होने चाहिए, कितने माइटोटिक डिवीजन की जरूरत है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो देखो, इफ यू टेक नॉर्मल मेथड कि हाउ मेनी डिविजन्स होने चाहिए, तो आपको काउंट करने में टाइम लगेगा। सपोज एक सेल है, फिर ये माइटोटिकली डिवाइड हो जाएगी, वो 2 सेल्स बनाएंगे, ठीक है ना, फिर ये डिवाइड होंगी, फिर ये अपनी 2 सेल्स बनाएंगे, है ना। इस तरीके से अगर आप करेंगे, फिर ये सेल्स डिवाइड होंगी, इनके 2 बनेंगे, फिर यहाँ पे ये 2, ये 2, ये 2। सो अल्टीमेटली जब तक यहाँ पे लास्ट फेज, लास्ट स्टेज तक आपको 100 नंबर नहीं आएगा, तब तक आपको डिवीजन करते रहना है। बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो आपको मैक्सिमम 1 मिनट में ये क्वेश्चन करना होता है। तो आप 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो है आपको शॉर्ट में एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सपोज 100 नंबर ऑफ सेल्स के लिए आपको निकालना है कितने माइटोटिक डिविजन्स लगते हैं। सो जस्ट सपोज that represents the n represents the number of cells। ठीक है, सो जितने नंबर ऑफ सेल्स आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, जस्ट रिप्रेजेंट इट एज ए n। ओके, एंड पुट द फॉर्मूला हियर n minus 1। So if you put the value here, n represents the number of the cells which are there given in the question. So 100 minus 1, it is equivalent to 99. So that will give you the answer that 99 mitotic divisions are required to produce 100 number of the cells, to produce the 100 number. This is a shortcut method to remember that how many, whatever the number of cells are given in the question, and you need to get that how many mitotic divisions are required for that. Just put that number as n represents and minus 1, that you will get the final answer of that question. Okay, so this is how you need to solve such kind of questions based on the number of mitotic divisions. Now another question on the cell division, वो आपको इस तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से होगा, how many mitotic generations are required to produce 100 number of cells। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरीके से आएगा। Another question will be like this, that how many mitotic divisions are required to produce
n number of the cells, suppose whatever the number is given. So how will you do that? Mitotic generation, remember the mitotic division is different and the mitotic generation is the different. You have to first understand how the cells are going to divide. If this is a parent cell, okay, this is first generation parental generation cell which undergoes the process of mitosis. Now this cell, if it divides, first mitosis happen to this cell, then it will divide it, it will produce the two cells, two daughter cells. Fine. So one and two daughter cells will be produced. Now this is the another generation, so it will call the first generation. That is the first generation. So that means in the first generation, if we require the two cells, then how many mitotic division occur? One mitosis occur. Okay, one cell में माइटोसिस हुई, दो cells बन गए. Now if we require the four cells, then these cells when they divide, if this cell get another mitotic division, it will produce another two daughter cells, and this will divide, it will produce another two daughter cells. So 1 2 3 4, we got the four cells in this generation. So ये फर्स्ट पैरेंटल जनरेशन डिवाइड हुई तो फर्स्ट जनरेशन में दो सेल्स बनी. फर्स्ट जनरेशन में डिवीजन हुआ, अनदर डिवीजन, एक और जनरेशन बन गई, उसमें डिवीजन हो गया, तो हमें सेकंड जनरेशन मिल गई, सेकंड जनरेशन ऑफ सेल्स, और इसमें 4 नंबर ऑफ सेल्स बन गई. Same manner, in the same manner, if these cells will continuously divide, now second generation will divide, each cell will divide and each cell will produce its two cells. It is another two daughter cells. So finally यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 generations of cells, जो 3 generations complete जब होती है तब यहाँ पे 8 number of cells बन जाती है ना. Now you can see कि यहाँ पे दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाती है, generations भी और mitotic divisions भी, ठीक है ना, जो इससे पहले क्वेश्चन मैंने दिखाया था. Now अगर 8 number of cell बनाने हैं तो कितने mitotic division हो गए, यहाँ पे कितनी सेल्स में माइटोसिस हुई? 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 सेल्स में माइटोसिस हुई तो बनी कितनी? 8 सेल्स बनी. तो इसलिए शॉर्ट में इसमें फॉर्मूला क्या याद रखना है? n-1. ठीक है ना बेटा. सो n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द सेल्स. नाउ यही चीज अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, माइटोटिक जनरेशंस कितनी लगती है 100 नंबर सेल बनाने में, या 100 के बजाय हम अगर सिर्फ 8 नंबर भी दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. See here, 8 नंबर ऑफ सेल बनाने के लिए फर्स्ट जनरेशन सेल डिवाइड हुई, फिर सेकंड जनरेशन की सेल्स डिवाइड हुई, फिर थर्ड जनरेशन की सेल डिवाइड हुई, तो 3 जनरेशन की सेल जब डिवाइड हुई तो बन गई हमें 8 सेल्स. तो इसीलिए नंबर ऑफ जनरेशंस के बजाय हम लेंगे 2 पावर n. यहां पे क्या लेंगे? 2 पावर n. सो जो n यहां पे है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ जनरेशंस, नंबर ऑफ जनरेशंस. तो इसी n को हम वैल्यू देंगे. क्या देंगे? वैल्यू. सपोज 2 पावर 1 इक्वलेंट टू 2. सो 2 को पावर 1 देंगे तो 2 सेल्स बनेंगे. 2 पावर 2 इक्वलेंट टू 4 एंड 2 पावर 3 इक्वलेंट टू 8. सो इफ यू सी हियर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, आपने भी देखा कि 3 जनरेशंस लग गई 8 नंबर ऑफ सेल्स बनाने के लिए. ठीक है ना. सो रिमेंबर इन द सेम फॉर्मूला 2 power 3, so 3 represents the number of generations. So 3 generations are required to produce 8 number of the cells. Same in the question, अगर आपको अब 100 नंबर देखना है, whatever the number is given in the question, तो आपको इसी फॉर्मूला से चलना है. put the number of this n over there. Okay, so 2 पावर 3 आपने 8 देखा. so अगर हम इसी को करेंगे 2 पावर 4 क्या आएगा? 16. 2 पावर 5 क्या आएगा? 32. 2 पावर 6 क्या आएगा? 64. ठीक है ना. एंड
2 पावर 7 क्या आएगा 128, ठीक है ना। सो वंस, अभी तक देखो जब तक जनरेशन आप बढ़ाते गए नंबर जनरेशन, जब तक ये 100 जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ दिया हुआ है सेल्स, जब तक वो आएंगे नहीं तब तक आपको बढ़ाना है जनरेशन, ठीक है। जैसे आप 2 पावर 6 हुए तो 64 ही था, जैसे आपने एक और जनरेशन बढ़ाया 2 पावर 7 तो 128 नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं। तो इट मींस आपका 100 नंबर यहां पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना, 100 सेल्स बन रही है, ठीक है। सो आप लेंगे कंप्लीटली 2 पावर 7। सो इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहां पे ऑप्शन दिया होगा क्या 2 जनरेशन लगेंगे, 5 लगेंगे, 6 लगेंगे, 7 लगेंगे, 8 लगेंगे। सो जब आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा 7 जनरेशंस लगेंगे 100 नंबर ऑफ सेल्स बनाने के लिए, ठीक है ना। सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द माइटोसिस, आपको ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ माइटोटिक डिवीजन एंड माइटोटिक generations. Okay beta, I hope you understood how to give the answer of these type of question in a short period of the time. Now let me show you in the same manner ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपको मियोसिस के ऊपर भी नीट में आ सकते हैं, ठीक है। So let me take you through now some questions based on the meiosis, ठीक है बेटा। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको मियोसिस में, simply how many meiotic divisions will be required to produce 50 number of gametes, 50 number of gametes। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, बताओ 50 नंबर ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करने के लिए कितने मियोटिक डिविजन्स लगेंगे। नाउ यू नो दैट कि अकॉर्डिंग टू दी मियोसिस आपने पढ़ा है, तो मियोसिस से क्या होता है, मियोसिस में आपने देखा कि एक सेल जो मियोसाइट सेल जो डिप्लॉयड होती है, मियोसाइट सेल ये जब प्रोसेस में चली जाती है मियोसिस में, तो पहले मियोसिस 1 होता है, इसमें मियोसिस 1 में इससे 2 सेल्स बनती है, ठीक है ना, इससे 2 सेल्स बनती है, बट ये दोनों डॉटर सेल्स जो है ये गैमेटिक सेल्स नहीं होती है, ठीक है ना, ये आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द मियोसिस, डॉटर सेल्स बट नॉट द गैमेट्स। दोनों सेल्स जो है दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 यहां पे कंप्लीट करेंगे दोनों, तो ईच सेल से जो है अनदर 2 सेल्स बनेंगी, दोनों अपनी 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे, ठीक है बेटा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा मियोसिस में। फाइनली मियोसिस 2 के बाद जो ये सेल्स निकलेंगी, कितनी निकली ये सेल्स, 4 सेल्स। 4 सेल्स जो है ये हैप्लॉइड सेल्स है, क्या है, दीज आर द हैप्लॉइड सेल्स, और इन्हीं यही सेल जो हैप्लॉइड सेल है ये गैमेटिक सेल्स होती है, दीज कैन फंक्शन एज द गैमीट्स, दीज सेल्स कैन नॉट फंक्शन एज द गैमीट्स। ओके, नाउ ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द मियोसिस। अब आपने देखा कि एक सेल जो मियोसिस कंप्लीट करती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो एक सेल से कितनी सेल्स बनती है, 4 सेल्स बनती है, ठीक है, रिमेंबर दिस। नाउ इफ यू काउंट मैनुअली, अगर आप ऐसे काउंट करेंगे 1 से 4 बने, 2 से 8 बनेंगे, इस तरह से सिंपल वे में काउंट करेंगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे फिर, जैसे एक सेल से 4 बनते हैं, है ना, तो 4 इंटू 10 कितना हुआ, 40 हुआ, है ना। इस तरह अगर हम दिमाग लड़ाएंगे तो आपको कैलकुलेशन में अगर ऐसा दिक्कत टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को जो है ऐसे करेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको एग्जामिनेशन में, तो इसको शॉर्टकट में आपको शॉर्टकट में याद रखना है कि सिंपली एक मियोसाइट से 4 गैमीट सेल्स बनती है, तो जितने भी सेल्स दी हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे यहां पे दिया है 50 नंबर ऑफ गैमीट बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीजन लगेंगे, सो ये जो 50 नंबर ऑफ गैमीट है, 50 नंबर ये बन रहे हैं 50 नंबर, तो इसको करना है डिवाइड बाय 4,
क्या करना है, डिवाइड बाय 4। क्यों? क्योंकि एक सेल से 4 बनते हैं, है ना। तो जब हम इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, सो इट विल बी 12.5। क्या होगा, 12.5 एग्जैक्टली। अगर देखेंगे तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि अगर हम मियोटिक डिवीजन, कितने मियोटिक डिवीजन होंगे टू प्रोड्यूस द 50 नंबर ऑफ द गैमीट्स। अब आपने देखा कि जब आपने ये किया डिवाइड बाय 4, 12.5 आ रहा है, यानी ये रेशियो में जो फ्रैक्शंस में आ जाता है, पॉइंट में आ जाता है। कोई भी सेल डिवीजन हाफ नहीं होता है। जब अंदर सेल में डिवीजन होगा, पूरा डिवीजन होगा तो या तो नहीं होगा, है ना। तो जब सेल पूरी डिवाइड होगी या तो नहीं हो, हाफ कुछ नहीं होता है। बट अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन इतना आ रहा है। बट अब आपको यहां पे क्या करना है, अगर वैल्यू 5 तक या 5 से अबो आ रहा है तो आपको यहां पे 12 के बजाय 13 लेना है। क्या लेना है, 13 लेना है। और अगर ये 12.4 होता तो आपको 12 ही लेना था। क्या लेना है, 12 ही लेना है। क्योंकि सेल, ये मैथमेटिक्स अलग है बट यहां पे ये भी लॉजिक लगाना है कि सेल जब डिवाइड होगी तो सेल यहां पे एक सेल से 4 बनते हैं, तो वो सेल जब डिवाइड होगी तो 4 सेल्स बनाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 ही सेल बनाएगी, 3 ही सेल बनाएगी, कंप्लीट डिवीजन होगा। तो यहां पे भी कंप्लीट मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो जब 48 हो गया इंटू 10, 12 से 48 हो जाएगा, तो उसके बाद एक और डिवीजन कंप्लीट होगा तो 50 क्रॉस होगा, टोटल 52 सेल्स बनेंगी, बट 50 क्रॉस होगा, दैट इज द 13, that will be 13. So 13 mitotic divisions will be required to produce 50 number of the gametes, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है। अब यही क्वेश्चन को ना आपको एक और ट्विस्ट, एक और पैटर्न में आ सकता है। जैसे ये आपने देखा सिंपल वे में, यही क्वेश्चन आपको एक और पैटर्न में इस तरह से आ सकता है। देखो, अगर यहां पे क्वेश्चन में फ्रॉम द गैमीट, गैमीट की जगह पे जो है चेंज किया जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन होगा, हाउ many meiotic divisions will be required to produce 50 number of pollen grains। क्या होगा, 50 number of pollen grains, pollen grains। Now you know that कि पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन भी फंक्शन करता है प्लांट में एज ए मेल गैमीट की तरह, ठीक है ना। तो ये मेल गैमीट के बराबर होता है। तो पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड ही है, क्या है, हैप्लॉइड सेल है। ये भी डिप्लॉइड मियोसाइट सेल से ही बनते हैं, सेम इज द केस। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि गैमीट की जगह पोलन ग्रेन लिखा है तो समझ लो ये भी मेल गैमीट के बराबर है, ठीक है ना। तो अब 50 पोलन ग्रेन बनाएंगे, कितने माइटोटिक डिविजन्स लगेंगे। अब बेटा सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लो, सेम फॉर्मूला, क्योंकि एक पोलन मदर सेल से, 1 पोलन मदर सेल जब उसमें मियोसिस होती है तो उससे 4 पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। तो यहां पे भी फॉर्मूला n/4 लगाना है। सो n इज इक्वल 50/4, ठीक है ना, सेम। सो इफ यू गो टू इट इज 12.5 अगेन सेम। यहां पे भी आपको 12.5 को किस में कन्वर्ट करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंप्लीटली 13 लेना है। क्या लेना है, 13 लेना। तो दैट मींस 13 meiotic divisions are required to produce 50 number of the pollen grains, ठीक है। So this is how the question may come based on the meiotic divisions. Now again there will be the same question in the different pattern based on the meiosis। एक और क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है based on the meiosis। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आएगा, बताओ how many meiotic divisions, how many meiotic divisions are required to produce 50
80 number of seeds, 80 नंबर ऑफ सीड्स। देखो डिफरेंस क्या है। अब मैंने यहां पे पोलन ग्रेन नहीं लिखा या गैमीट नहीं लिखा, मैंने लिखा सीड्स। क्या लिखा? सीड्स। नाउ हियर आपके माइंड में बहुत सारी चीज, सीड माइंड, यहां पे जो बच्चा होता है वो नॉर्मली वही फॉर्मूला लगाता है, सेम फॉर्मूला n/4 लगाता है, ठीक है। तो उसमें आंसर गलत निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि जब हम देखेंगे वहां पे गैमीटिक सेल बनाने का बोल रहा था, तो गैमीट में एक मदर सेल डिवाइड होती तो उससे 4 गैमीट बन जाते हैं, ये याद रखना है। बट यहां पे सीड की बात है, तो सीड कब बनता है? सीड फर्टिलाइजेशन यानी मियोसिस के बाद जब गैमीट बनते हैं, फिर उसके बाद गैमीट्स फ्यूज भी होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है सीड बन जाता है। ये सब माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है याद। इसीलिए अगर यहां पे क्वेश्चन में सीड लिखा होगा तो याद रखो इसके लिए फॉर्मूला अलग लगता है, तो वो फॉर्मूला जो है इस तरह से याद रखना है, टू सेव द टाइम। If we have to get how many meiotic divisions are required to produce 80 number of the cells, so let 80 number of cell represented as the n, represented as n. So put the formula here, n plus n by 4, n plus n by 4. This is the formula to get the number of meiotic division for the seeds. So if you see, put the value here, what is the n? N is 80 plus 80 by 4. 80 plus 80 by 4. Now if you get the answer of this, so how much it will be? ठीक है, so it will be 80 plus 20, it is 100. It is 100. ठीक है, so we required 100 meiotic divisions to produce 80 number of seeds, not gametes, 80 number of seeds. तो formula is a different, ये formula याद रखो, the formula is different for seeds and the formula is different for the other meiotic cells या other gametic cells, उनके लिए अलग होता है। तो ये चीजें, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर आ सकते हैं सेल डिवीजन में, ठीक है। सो यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स एंड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। Now let me take you through the another type of the questions which you may get through by these kind of the question, patterning of the questions in the NEET, okay। इनको थोड़ा सा याद रखो बेटा। So you may get the questions like that if there is a question asking that how many homologous pairs, how many homologous pairs can be seen in an haploid cell, during the zygotine stage, during the zygotine stage of meiosis 1। सो अगर आपको क्वेश्चन आएगा बेटा कि ये क्वेश्चन दिया होगा हाउ many homologous pairs can be seen in the haploid cell during the zygotine stage of the meiosis। Now you know that according to the zygotine, आपने पढ़ा है zygotine के बारे में, कहां पे क्या होता है, and if there would be the options like, ठीक है, if there would be the options like 23, fine, options will be like this, 46, ठीक है, और 20 और 0 फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने ऑप्शन रखे हैं, ठीक है।
नाउ देयर इज अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हियर। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कि क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू मियोसिस सही बोल रहा है कि कौन से स्टेज में जो है मियोसिस 1 के जाइगोटीन स्टेज में कितने होमोलॉगस पेयर होते बनते हैं। नाउ यू हैव गॉन थ्रू दिस होल chapter of the cell division. You must be know that meiosis के zygote stage में क्या होता है, homolog pairing होती है, synapsis हो जाता है ना। तो वहां पे अगर हम ह्यूमन सेल को लेंगे तो ह्यूमन सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। तो टोटल नंबर ऑफ 46 में वहां पे बाइवेलेंट्स जो बन जाते हैं जाइगोटीन में होमोलॉगस पेयर, तो वो टोटल पेयरिंग जब करेंगे तो टोटल पेयर कितने बनेंगे, 23 बनेंगे, है ना, 23। तो नॉर्मली जो स्टूडेंट जब सोचता है ऐसे सोचता है, वो क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से नहीं देखता है। तो जब ऐसे ही देखेगा ऑर्डिनरीली तो उसके माइंड में ये आ जाता है और वो इसको क्लिक करता है, आंसर देता है। बट ये रॉन्ग आंसर है। क्या है, ये रॉन्ग है। दिस इज अ रॉन्ग आंसर। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे, गौर से पढ़ोगे, देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है। मैंने लिखा क्वेश्चन में सेम होमोलॉगस पेयर कैन बी सीन, है ना। बट मैंने एक ट्विस्ट यहां पे किया कि मैंने यहां पे डिप्लॉयड सेल नहीं लिखा, मियोसाइट सेल नहीं लिखा, मैंने लिखा यहां पे हैप्लॉयड सेल। क्या लिखा, हैप्लॉयड सेल, ठीक है ना। तो यहां पे आपको लॉजिक जाना चाहिए, सोचना है यहां पे कि क्या हैप्लॉयड सेल में ये सब होता है कि नहीं होता है। पहले यहां लॉजिक जाना चाहिए कि इस सेल में होगा पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल होगा। जैसे हम सब जानते हैं कि हैप्लॉयड सेल जो है उसमें मियोसिस नहीं है, तो हैप्लॉयड ऑलरेडी है तो उसमें मियोसिस ही नहीं होगा ना। तो इसलिए इस सेल में कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो यहां पे कोई भी पेयर यानी जीरो, क्या होगा, जीरो, कोई होमोलॉगस पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। सो दैट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपको सेल डिवीजन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका पैटर्न ऐसा होगा कि स्टूडेंट को लगता है कि बिल्कुल ये ऐसा है, मैंने पढ़ा है, ये स्टेज में ऐसा होता है, लेकिन वो लॉजिक नहीं लड़ाते हैं कि सेल की टाइप क्या है, क्या ये पॉसिबल है नहीं है। इन चीजों पे भी ध्यान देना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको नीट में, ये नीट में आया भी है क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज कम इन द नीट ऑन एन एवरेज, आई थिंक इन 2021 में ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। सो रिमेंबर दीज थिंग्स, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। नाउ सिमिलरली आपको और भी क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं मियोसिस के ऊपर। सपोज देयर विल बी द क्वेश्चन लाइक दिस, a myocyte enters into meiosis having 50 number of chromosomes, having 50 number of chromosomes, then what will be the number of chromosomes present in a cell during anaphase 1। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में भी। क्वेश्चन यही जो है माइंड थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। बट इफ यू विल प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन द नीट एग्जाम। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि मियोसाइट सेल जो है, द मियोसाइट सेल दैट एंटर्स इनटू द मियोसिस, जो मियोसिस में एंट्री करेगी, दैट सेल हैज द 50 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके, देन
what will be the number of the chromosomes present in a cell during the anaphase 1? तो बताओ फिर एनाफेज 1 में सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, कितने क्रोमोसोम होंगे? नाउ यू शुड नो दैट होल प्रोसेस ऑफ द मियोसिस। अब यहां पे ध्यान देना है, सेल के अंदर जो डिप्लॉइड सेल है, मियोसाइट इज अ डिप्लॉइड सेल, ठीक है। तो मियोसाइट के अंदर 50 क्रोमोसोम्स है, 50 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब यही सेल जब एंट्री करेगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 50 सेल, तो पहले ये सेल इंटरफेज में जाएगी। किसमें? इंटरफेज में। तो ये इंटरफेज क्रॉस करेगी। अब आपको पता होना चाहिए इंटरफेज में G1 फेज, S फेज और G2 फेज में क्या होता है, कहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे G1 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर सेल में 50 है तो G1 फेज में कितना रहेगा? 50 रहेगा। Now if you see S phase में क्या होता है? You should know that यहाँ पे DNA डबलिंग हो जाती है, DNA डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। This is also point to remember. So इस सेल का भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या रहेगा? 50 रहेगा। G2 फेज में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज नहीं होता है, ये 50 रहेगा। नाउ उसके बाद आपको पता है ये सेल इंटरफेज के बाद किस में जाएगी? प्रोफेज 1 में, ठीक है, प्रोफेज 1। तो प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1 उसके 5 स्टेजेस हैं। क्या है? 5 स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। उन सब फेजेस में कहीं पे भी क्रोमोसोम डबल नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता है। दो चेंजेस बहुत सारी आती है जो आपने मियोसिस में देखा, वहां पे बाइवेलेंट्स बनते हैं, टेट्राड्स बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ना तो रिड्यूस होता है ना ही ज्यादा होता है, दैट रिमेन्स द सेम प्रोफेज तक। फिर प्रोफेज के बाद मेटाफेज 1 आएगा, तो मेटाफेज 1 में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं होता है। नाउ वंस द एनाफेज कम्स, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या देना है आंसर? एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा विद इन द सेल। अब आपको पता है अगर आप एनाफेज लेंगे, ठीक है, से फॉर दिस इज द एनाफेज स्टेज, सेंट्रियोल्स एट द अपोजिट पोल्स। तो एनाफेज में क्या होता है बेटा? आपने देखा मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम जो है सेंट्रली यहां पे अलाइंड हो जाते हैं सेंटर में, और वो यहां पे 2 मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता है मेटाफेज 1 में होता है। जब एनाफेज आ जाता है तो एनाफेज में जो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम टेट्राड फॉर्म में होते हैं वो यहां पे अलग हो जाते हैं। सो 1 क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स goes to one pole of the cell like this, और ये टेट्राड का हाफ जो है इट विल मूव टुवर्ड्स द अनदर पोल ऑफ द सेल। तो यहां पे इस तरह से सारे क्रोमोसोम जो है वो सारे क्रोमोसोम, यानी सेल के अंदर अगर हम ह्यूमन सेल लेंगे तो ह्यूमन सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है ना। तो वो जो है 46 अभी पेयर में थे, ये पैटर्नल और मैटरनल पेयर में था, तो 23 पेयर यहाँ पे सेंटर में थे। अब उसके बाद वो अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए एनाफेज में। तो एनाफेज में उसका हाफ जो है इधर गया। सो ये एक क्रोमोसोम दैट विल बी 23 chromosomes will be towards this pole of the cell and 23 will be towards this pole of the cell। लेकिन एनाफेज 1 में याद रखो जब क्वेश्चन बोलेगा, यहां पे 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है, यही दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में देखो आप। क्वेश्चन ट्विस्ट भी ये हो सकता है कि बताओ इफ द मियोसाइट इज 50 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, तो बताओ फिर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ड्यूरिंग एनाफेज 1, और यहां पे होगा एट ईच पोल
पोल, ये एक अनदर ऑप्शन, एक और क्वेश्चन बन सकता है यहां पे। अगर एक क्वेश्चन पे लिखा होगा एट ईच पोल तो वो अलग देना है, अगर क्वेश्चन में लिखा है इन अ सेल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो अभी ये सेल जो है सेपरेट नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हुआ है, ये सेल डिवाइड नहीं है, सेल अभी सेम है। विद इन द सेल अगर देखेंगे तो विद इन द सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 अगर इस पोल पे है तो इस पोल पे है, बट विद इन द सेल टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 46 है। क्या है, 46। तो यही चीज आपको सीखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन यहां पे विद इन द सेल बोलेगा, तो अगर उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 50 था सेल में, मियोसाइट सेल में, तो उस समय एनाफेज 1 में विद इन द सेल कितना होगा, तो विद इन द सेल भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम रहेगा, 50 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 50 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, विद इन द सेल क्या होगा। नाउ अगर सेम सेकंड क्वेश्चन इस पे बनेगा एट ईच पोल, कि बताओ एट ईच पोल पे कितने क्रोमोसोम रहेंगे। अब आपको पता है विद इन मियोसाइट सेल टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिया है 50 है, तो एट ईच पोल हाफ इधर रहेगा, हाफ इधर रहेगा, सो एट ईच पोल देयर विल बी द 25 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने होंगे, 25 नंबर। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको हर फेज के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। एनाफेज के ऊपर आएगा, मेटाफेज के ऊपर आएगा, टीलोफेज के ऊपर आएगा। ठीक है ना, सो दीज आर सम ऑफ दी टिपिकल क्वेश्चंस जो स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इनको आंसर देने में, दैट इज व्हाई आई हैव शोन दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस। आई होप you have understood well these pattern of the questions, and I will show you some more question in the next lecture. Thank you very much.